Good morning, all of you. Today we are going to study our class note 8, chapter number 3, source of finance for joint stock company. Today our topic will be preference shares. What is the meaning of preference shares? In earlier video, we studied about the types of shares. There are two types of shares, equity share and preference share. In previous video, we studied about the equity shares. Now we have to study preference shares. What is the meaning of preference share? What is the features of preference shares? What is the advantage and disadvantage of preference shares? Okay. So start here with meaning. Preference share means it is the hybrid form of security comprising both features of equity shares and debenture. Hybrid means mix up of two things. It is the hybrid security. It is hybrid security comprising the features of both equity shares and debentures. All of you know what is the equity shares and what is debenture. Equity shares means equity shares. What is the meaning of equity shares? Means equity share will get preference after paying dividend and repayment of capital of preference shares. As the name of preference shares, preference means पहले इसको preference मिलती है. इसमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. That's why it is being said preference shares. Okay. Now इन इक्विटी शेयर्स में क्या हमको मिलता है? डिविडेंड. डिविडेंड. और डिवेंचर में कंपनी क्या पे करती है? इंटरेस्ट. In case of equity shares, company will pay their shareholder dividend, and in case of debenture, company will pay their debenture holder interest. Okay? Interest क्या होता है? फिक्स रेट पर होता है. ओके. बट डिविडेंड क्या होता है? वेरिएबल होता है. ये भी फिक्स तो होता है लेकिन वेरिएबल होता है. क्यों? क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तभी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी. ओके. So different definition here come. It is a hybrid security which is comprising the features of both equity shares and debenture. Okay, like equity share, company will get dividend. Like debenture, company will pay a fixed rate of dividend. Okay. Now here come the features. What is the three features of dividend? First point, second point, and third point. First point is saying dividend at fixed rate. Here is the feature of security. Dividend at fixed rate must be paid before equity shares. Here is the equity shares. Equity share. Meaning is this first feature का क्या है कि डिविडेंड तो पे होता है प्रेफरेंस शेयर को बट आफ्टर बिफोर इक्विटी शेयर. क्लियर? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों के केस में डिविडेंड पे होता है. ठीक है. डिविडेंड किसको पे करते हैं? शेयर होल्डर को. ओके. और सेकंड पॉइंट इज सेइंग इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर क्या होती है? प्रायोरिटी होते हैं किस चीज में? रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, पेड बैक देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर. Second point is saying in the event of winding of the company, equity share preference shareholder will be pay back before equity shareholder. Third point is saying enjoying limited voting right. इनको क्या होता है? लिमिटेड वोटिंग राइट होता है. लिमिटेड वोटिंग राइट होता है इन किस केस में? व्हेन डिविडेंड अनपेड. जब डिविडेंड किसी सर्टेन पीरियड का पेमेंट नहीं होता है तो इनको क्या होता है? वोटिंग राइट होती है, लिमिटेड होती है. बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर उनको हमेशा वोटिंग राइट रहती है. क्लियर? ये जो थ्री फीचर्स, फर्स्ट इज इन केस ऑफ डिविडेंड, थर्ड वन इज इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज इन केस ऑफ वोटिंग राइट. ओके. Now here types of preference shares. First point is cumulative preference shares. Second, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible, redeemable and irredeemable. Here is given 8 types of preference shares. Let's start one by one. What is the cumulative preference shares? Cumulative preference shares means वो share on which we will get arrear of dividend. एरियर मीन्स जहां पे रेगुलर पेमेंट हो, ठीक है ना, वहां पे एक या दो पेमेंट मिस हो जाए, दैट इज बीइंग कॉल्ड
एरियर मींस बकाया, ठीक है। एरियर, आप सपोज करो किसी शेयर होल्डर्स को किसी 1 या 2 साल में किसी भी रीजन से डिविडेंड नहीं मिला, क्लियर है, तो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल क्लेम देयर डिविडेंड इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एरियर ऑफ डिविडेंड। जिस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एरियर ऑफ डिविडेंड होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में यानी सब्सिक्वेंट ईयर में अपने एरिया को क्लेम करते हैं, क्लियर है, किससे, कंपनी से। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। सेकंड में से नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स, ये प्रेफरेंस शेयर क्या बोलते हैं, कोई भी डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, नो एनी क्लेम ऑफ एरियर्स ऑफ डिविडेंड, ओके, ये नहीं कर सकते इनको, बोले इनको किसी भी ईयर में प्रॉफिट मिला हो या ना मिला हो, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये शेयर होल्डर क्या होते हैं, राइट टू शेयर्स इन प्रॉफिट। ये शेयर होल्डर क्या होते हैं, इनका राइट होता है किस चीज में, प्रॉफिट, अगर कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट हुआ है तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी राइट होता है कि इस प्रॉफिट में से और इनको मिले, एक्सेप्ट देयर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस क्या होते हैं, जो इनको रेगुलर डिविडेंड मिलता है एवरी ईयर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, उसके अलावा इनका राइट होता है जो कंपनी को अगर सरप्लस प्रॉफिट हो तो उसमें भी शेयर्स लेने का, दैट इज बीइंग कॉल्ड, इट इज द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग जस्ट अपोजिट, इनका कोई राइट नहीं होता है, they have no any right to share in profit, share in surplus profit, they will get only a fixed rate of dividend, okay। now it is being called convertible preference shares, वो shares which is easily converted into equity shares, okay, at a specified time, at a decided time। वो शेयर जो इजिली इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए at any time of which is decided by the management or decided as per the company's terms and condition, this is the convertible preference shares। non convertible में क्या होता है, cannot be converted into equity shares at any decided time, ओके, या स्पेसिफाइड पीरियड। रिडीमेबल क्या होते हैं, रिफंड ऑफ कैपिटल हो जाता है, कैपिटल रिफंड होता है इनका, क्लियर, इनका कैपिटल रिफंड हो जाता है, कब होता है, एट द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइम, ओके, क्लियर। इरिडीमेबल जस्ट इसका अपोजिट, कुछ भी रिफंड नहीं होता एट ए स्पेसिफाइड टाइम, क्लियर, नो रिफंड, मैं इसका इनका स्पेसिफाइड टाइम पर नहीं, इनका कभी भी फंड रिफंड कर सकते हैं, कोई इनका स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता है, ओके। हियर इज द 8 टाइप्स ऑफ here is given, we discuss about 8 types of preference shares। now next we will start what is the advantage and disadvantage of preference share। first point is company and second is investor point of view। he has given appeal to cautious investor, appeal to cautious investor, cautious means the investor who wants their investment who wants their investment will be regular and return will be received on timely basis, on regular basis। in such cases company will be get benefit। company attract करती है किसको, एक cautious investor को, investor who doesn't want take any type of risk, clear। second point is no burden on profit। definitely कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड ही देती है, क्लियर है, तो डिविडेंड किससे मिलता है, प्रॉफिट। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देगी, अदरवाइज डिविडेंड नहीं देगी। और इसके जो इश्यू कॉस्ट होते हैं वो भी कंपेयर टू इक्विटी लो होते हैं, मतलब जब शेयर इश्यू करते हैं तो कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, क्लियर है, तो कंपेयर टू इक्विटी इन दिस केसेस, कंपेयर टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में इश्यू कॉस्ट का होता है, कम होता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज नो इंटरफेरेंस ऑन द मैनेजमेंट। डेफिनेटली जिसको वोटिंग का राइट मिला होगा, कंट्रोलिंग पावर मिला होगा, वोटिंग
कंट्रोलिंग। इन जनरल केसेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, क्लियर है? इन सम केसेस, बट ओनली इन लिमिटेड केसेस में होता है, बट इन जनरल ऑल द केसेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट, दे डोंट हैव एनी कंट्रोलिंग पावर ओवर द मैनेजमेंट। तो शेयर होल्डर का कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता, मैनेजमेंट में नहीं होता है, कंपनी के डे टू डे अफेयर में नहीं होता है। ये भी कंपनी का एक एडवांटेज है। तो कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी अपने हिसाब के अकॉर्डिंग रन करती है। नो चार्ज ऑन द एसेट्स मींस चार्ज मींस मॉर्गेज। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्गेज? मींस कंपनी शेयर को इश्यू करती है तो कोई भी अपने एसेट्स को मॉर्गेज नहीं करती है, बंधक नहीं रखती है किसी के भी पास। ओके तो अगर कंपनी कोई अपना एसेट मॉर्गेज नहीं रखती तो कंपनी क्या करती है, फ्यूचर में अगर कंपनी को और फंड की रिक्वायरमेंट है तो मार्केट से और ज्यादा फंड रेज कर सकती है, लोन ले सकती है। नाउ फिफ्थ एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। In types of preference shares, we study about the convertible preference shares, redeemable preference shares, okay, participating preference shares। ये सब शेयर क्या होते थे कि टाइम टाइम पे अपने नेचर चेंज कर लेते थे, ठीक है ना? जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो क्या होता था कि एक टाइम आने पे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता था। रिडीमेबल क्या होता था, एक स्पेसिफाइड पीरियड आने पे वो कैपिटल उसका रिफंड हो जाता था। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड फ्लेक्सिबल। Advantage our second part is investor point of view. First one saying more stable and regular dividend. डेफिनेटली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है, क्योंकि इन्वेस्टर जैसा चाहेगा वैसा इन्वेस्ट करेगा, वो अपने इन्वेस्टमेंट को रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो मोर स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड मिलता रहता है किसको, शेयर होल्डर को। ओके इन सच केसेस ये भी बेनिफिट है। सेकंड पॉइंट से रिस्क इन्वॉल्व लेस इन पेमेंट ऑफ कैपिटल। डेफिनेटली कंप्लीट सिक्योर इन्वेस्टर चाहता है तो वो किस में इन्वेस्ट करेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, क्योंकि इसमें बहुत कम रिस्क है और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर होता है। ओके नाउ थर्ड पॉइंट इज फिक्स पीरियड गेट बैक। इसका एक फिक्स पीरियड होता है 20 इयर्स का, उसके बाद से इनके कैपिटल क्या होते हैं, वापस हो जाते हैं। क्लियर? प्रेफरेंस होल्डर के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं मैक्सिमम 20 इयर्स के होते हैं, फिक्स पीरियड का होता है। आफ्टर दैट दे विल गेट बैक देयर कैपिटल। फोर्थ पॉइंट इज सेइंग डिविडेंड पेएबल फ्यूचर कम्युनिटी। मींस दिस कि अगर इन केस ऑफ कम्युनिटी शेयर्स अगर उनके करंट ईयर में कोई डिविडेंड नहीं मिलता हो तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में उनका डिविडेंड क्या होता है, मिलता है। मींस उनके डिविडेंड क्या होते हैं, कम्युनिटी होते हैं। ये भी एक बेनिफिट होता है इन्वेस्टर को, मतलब उनके डिविडेंड क्या होते हैं, फ्यूचर में भी पेएबल होते हैं इन केस ऑफ कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स। ओके लेट्स स्टार्ट डिसएडवांटेज। Now your disadvantage is given here from the company point of view and investor point of view. Company point of view and investor point of view. First we'll start here costly source. Comparison to debenture, preference issuance of preference share is costly. Okay, तो costly क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपके टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है and compared to debenture they have a several legal formalities. Okay that's why it is a costly. Now second point is permanent burden. अब क्या होता है कि ये तो जरूरी है नहीं कि कंपनी को प्रॉफिट में से डिविडेंड दे ही दे, बट इन केस ऑफ कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स अगर हमें इस साल प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर में हमें पे करना ही करना है। दैट्स व्हाई इट इज अ परमानेंट बर्डन ऑन कंपनी। थर्ड पॉइंट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करते हैं एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज देनी पड़ती है, केवाईसी, इन्वेस्टर के डिटेल्स, ओके कंपनी के सारे चेक करने पड़ते हैं। तो लीगल फॉर्मेलिटीज में बहुत टाइम लगता है और टाइम कंज्यूमिंग, this is a time consuming and also expensive, ठीक है? That's why it is also a demerit of the company. Third point is saying low appeal. अब कंपनी मैनेजमेंट को पता होता है कि इसको कम से कम क्वांटिटी में इश्यू करें, कम अमाउंट में इश्यू करें, क्योंकि ये वो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, बहुत सिक्योर टाइप के इन्वेस्टर होते हैं ना, सिर्फ वही लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज फोर डिमेरिट ऑफ preference shareholder in point of view, company point of view clear.
he is saying lack of voting right. Definitely in except some cases investor have a lack of voting right. कुछ केसेस को छोड़ दें, कुछ केसेस में इन्वेस्टर को लिमिटेड वोटिंग राइट होती है, लेकिन इस केस में क्या है, वोटिंग राइट होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर सकता है, इनके साथ कोई भी गलत काम कर सकता है, इन्वेस्टर को मैनिपुलेट कर सकता है, मिसगाइड कर सकता है। क्या कहते हैं, फियर टू बी सोन टू डू। अब इनके साथ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा तो वो किसी भी समय उनके शेयर्स अगर रिडीम हो गए एट ए स्पेसिफाइड टाइम, तो कंपनी को जब फंड की नीड होगी तो शेयर को रिडीम कर देंगे, तो उनके पास नीड खत्म हो गई तो क्या कर देंगे, इन्वेस्टर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो क्या करेंगे, वो उसके शेयर को वापस, कैपिटल को वापस कर देंगे और उनको बाहर खरीद देंगे, हटा देंगे। थर्ड पॉइंट सेइंग नो कैपिटल अप्रिसिएशन। अभी क्या है कि इनको कैपिटल अप्रिसिएशन होता नहीं है फ्यूचर में, तो ये दिस इज आल्सो डिमेरिट ऑफ द इन्वेस्टर। इसमें कोई भी कैपिटल अप्रिसिएशन है, कंपनी का अगर शेयर मार्केट, कंपनी बूम में पीरियड में, मार्केट अच्छा चल रही है, बिजनेस अच्छा रन कर रही है, तो इनको कोई भी कैपिटल अप्रिसिएशन डिविडेंड में पार्टिसिपेट नहीं मिलता है। इनका जो फिक्स रेट का डिविडेंड है सिर्फ उनको वही मिलता है। नो गारंटी ऑफ डिविडेंड। डेफिनेटली अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इनको डिविडेंड मिलेगा, और कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ओके, थैंक